Hello, you all. Today we are going to study Class 10's first chapter of history, The Rise of Nationalism in Europe. This chapter begins with a painting, and the painter of this painting is Frederick Sorio. So tell me who the painter is? Frederick Sorio. He painted this painting in 1848. So remember, he painted this painting in 1848, and the writer of this painting is Frederick Sorio, and he was a French artist. Remember this? He was a French artist. And so tell me, what did he name this painting? I hope you have given the right answer. The right answer is right here, Democratic and Social Republic. So, when we look closely at the painting, we can see in this painting, we can see in the sky there is God, God Jesus, and around him we can see many angels and Christ. When we look down, we can see some, like remains of absolutist institution. I mean, these things we can see here are the remains of despotism. I'll tell you the meaning of despotism when we study through my notes, but if we look closely, we can see the king's crown, the queen's crown, and the things that are used in the kingdom of the king. In this painting, they all are lying uselessly on the ground. And the third thing we can notice in this painting is that we can see a long line of people marching towards the Statue of Liberty. If you look closely in this painting, you can see a small torch in the hand of Statue of Liberty. This small torch is called Torch of Enlightenment, and in other hand of Statue of Liberty, you can see a Charters of Men's Right. Now we are going to study through my notes so I can tell you more about this painting. This is the painting I roughly made, so don't mind it because I know it is looking so bad. But what else can I do? So let's study through it. As I told you, in the upper hand, we saw the torch of enlightenment, and in other hand of Statue of Liberty, we can see the charters of men's right. Why only men's right, not human right? Because in that time, women's were not considered much important as men's. This is patriarchy, but we can do anything in that because patriarchy still exists in big 2026. Now I have to tell you that this painting is said to be a utopian vision. What is utopian? First, we have to understand the meaning of utopia. What does utopia mean? Utopia means sapna. As you can see here, the translation of utopia in Hindi is sapna. So now look at this question. What is utopia? Utopia is an imagined or ideal society where everything is perfect and people live in peace, equality, freedom, and happiness without any social or political problems. In simple language, we can say that utopia is a vision of society that is so ideal and so perfect that it is unlikely to be present in this time, but it can might be present in the future, but not at this point in this time. It does not exist. Look at this more small definition of utopia. It represents a dream of better future rather than a real place. Utopia represents a better future rather than a real place. So now we will move on to the next question. Write about the Frederick Sorio's painting. When did he painted this painting? Tell me without looking. I know you saw it, but tell me. 1848. And who was the painter? Frederick Sorio. What did he name this painting? I told you in the starting, Democratic and Social Republic. He made four prints of this painting. Not this painting, but he made another similar paintings and he made four print. Now we are going to look at these 10 points about Frederick Sorio's painting. So let's start.
The painting shows people of Europe and America marching in a long procession. Now I will talk to you in Hindi and translate this so that you and I can understand more better. इस पेंटिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर यूरोप के और अमेरिका के लोग हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यूरोप का तो ठीक है बट अमेरिका थोड़े आता है यूरोप में, तो अमेरिका क्यों है? उस टाइम अमेरिका भी एक पावरफुल कंट्री थी, वो आज भी इतनी पावरफुल और इम्पोर्टेंट है, तो इस वजह से इस पेंटिंग में फ्रेडरिक सोरियो ने अमेरिका को भी दिखाया है। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि यूरोप के और अमेरिका के लोग एक लंबी लाइन बना के एक मार्च करने जा रहे हैं। मार्च का मतलब होता है प्रोटेस्ट, धरना। तो एक वो लंबी लाइन बना के यानी कि लॉन्ग प्रोसेशन से वो एक मार्च में जा रहे हैं, यानी कि धरना करने जा रहे हैं। एंड इन द सेकेंड पॉइंट, मेंस एंड वुमेन्स ऑफ ऑल एजेस एंड क्लास आर पार्ट ऑफ दिस मार्च। ये जो लाइन हमें दिखाई गई थी चैप्टर में, इसमें चाहे आदमी हो चाहे औरत, चाहे वो किसी भी एज का हो, छोटी बच्ची हो, कोई अडल्ट हो या फिर कोई ओल्ड पर्सन हो, वो सब, और चाहे वो अमीर हो गरीब हो मिडिल क्लास हो कुछ भी हो, सब मतलब सब, आदमी औरत सब और सब, सब उसका लाइन का एक हिस्सा थे और वो मार्च की तरफ बढ़ रहे थे। And now it's time for the third point. They pay homage, bracket, respect to the Statue of Liberty, which symbolizes freedom and democracy. In this point, the people who was in the line, they were paying homage. Homage means इज्जत, रेस्पेक्ट। जो लोग हमें लाइन में दिखाई दे रहे थे वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को इज्जत देते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे, जो कि सिंबलाइज करता है कि आज़ादी को और लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी को। उनको लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि वो सब डेमोक्रेसी के चलते स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास जा रहे थे, उसको ये बताने के लिए कि हमने भी फ्रीडम ले ली है, तो वो उसकी रेस्पेक्ट करते हुए उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। Broken symbols or absolutist institution lie on the ground, showing the fall of monarchy and tyranny. मतलब हमने जैसे पेंटिंग में देखा था, नीचे राजा का क्राउन था, रानी का क्राउन था, वो सब ये शो करता है कि मोनार्की अब गिर चुकी है। मतलब अब मोनार्की नहीं है और ना ही मोनार्की का अत्याचार, ट्रायनी मीन्स अत्याचार है। नेक्स्ट पॉइंट, each group is represented as a distinct nation through their flags and their traditional costume. So एक बार हम पेंटिंग को फिर से देखते हैं। अगर आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखोगे तो जो ये लोग हैं इन सब के फ्लैग भी अलग अलग है। अगर और ज़्यादा ध्यान से देखोगे तो इन सब के जो कपड़े हैं यानी कि क्लोथ्स, इनमें भी डिफरेंस है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये लोग हैं तो अलग अलग बट ये एक ही चीज़ चाहते हैं, जो कि है फ्रीडम, डेमोक्रेसी। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड लेड द प्रोसेशन बीइंग established एज नेशन स्टेट। हमें इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि जो यूएस है और स्विट्जरलैंड है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से आगे पहुंच चुके हैं, यानी कि वो एक नेशन स्टेट बन चुके हैं। और जो लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी से जितना पास है वो उतने करीब है एक नेशन स्टेट बनने के, और लोग जितना दूर हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द एक नेशन स्टेट बन जाए। नेक्स्ट पॉइंट, France holding the revolutionary tricolor flag which is shown just reaching the statue। हमने पेंटिंग में देखा था कि एक फ्रांस नाम की कंट्री थी, उस कंट्री का एक नया फ्लैग था। पहले उनका जो रॉयल फ्लैग था वो तो कुछ और था, बट डेमोक्रेसी के चलते जब वो मोनार्की से आज़ाद हुए तो उन्होंने अपने लिए एक नया फ्लैग बनाया जो कि एक ट्राई कलर था, रेड वाइट और इंडिगो कलर का। हमें फ्रांस के पीछे दिखाई देते हैं जर्मन पीपल, not unified yet, carrying a flag symbolizing their liberal hopes in 1848। हमें पेंटिंग में जर्मन लोग दिखाई देते हैं जो कि अभी तक नेशन स्टेट तो नहीं बने, पर उनके मन में भी आशा है कि वो जल्द ही एक नेशन स्टेट बन जाएंगे और वो भी मोनार्की से आज़ाद हो जाएंगे। नेक्स्ट, नाइन्थ पॉइंट, following them are Austria, the two Siles, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia। ये सब फॉलो कर रहे हैं ऑस्ट्रिया को जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहा है। Christ, saints and angels watch from the heaven, symbolizing unity and fraternity among the nation।
जब हमने पेंटिंग में ऊपर की तरफ देखा था तो हमें कौन दिखे थे? गॉड, एंजल, सेंट्स, क्राइस्ट, ये सब दिखे थे। पेंटिंग में देख के इन सबको ऐसा लग रहा था कि जो गॉड है, एंजल्स है, वो सब खुश है, और जो लोग नेशन स्टेट बनने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं वो उनको ब्लेसिंग कर रहे हैं, यानी कि उनको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो खुश है कि सब आज़ाद होने वाले हैं। अब हमारे पास कुछ न्यू वर्ड्स हैं। सबसे पहले वर्ड है हमारे पास एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है a government or system of rule that has no restraint on the power exercised। इसका मतलब होता है कि जब कोई एक ही इंसान अपने हाथों में सारी पावर कंसंट्रेटेड करके रखे और उसको शेयर ना करे। इसके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है डिक्टेटरशिप। हमने क्लास 9 में पढ़ा था हिटलर वाले चैप्टर में कि हिटलर एक डिक्टेटर था, वो एक एब्सोल्यूटिस्ट डिक्टेटर था क्योंकि सारी की सारी पावर उसके पास थी, वन मैन रूल जिसे कहा गया। और एक और एग्जाम्पल हमारे पास हो सकता है मोनार्की का। मोनार्की में भी तो यही होता है, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की, सारी की सारी पावर राजा के हाथ में होती है और सबको राजा की बात माननी पड़ती है। नेक्स्ट वर्ड हमने पहले पढ़ा था यूटोपियन, जिसकी सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। नेक्स्ट वर्ड is plebiscite. What the next word is? Plebiscite. Repeat after me. Plebiscite. इस वर्ड का मतलब होता है कि जब किसी एक रीजन के रहने वाले लोगों से एक डायरेक्ट वोटिंग कराएं कि आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो या आप रिजेक्ट करते हो। डायरेक्ट वोटिंग इसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसे एक क्लास में एक टीचर है, उसने क्लास में से दो बच्चों को चुना कि ये क्लास का लीडर बनेगा और ये बनेगा, और बनना एक को था। तो क्लास के सभी बच्चे से बोलेगी कि आप वोटिंग करो कि आपको कौन चाहिए एज योर क्लास लीडर। सो जिसको बच्चे सबसे ज़्यादा वोट करेंगे वो क्लास का लीडर बन जाएगा। तो ये भी तो एक प्लेबिसाइड का एग्जाम्पल हुआ, यानी कि डायरेक्ट वोटिंग का एग्जाम्पल हुआ। इसका एक और डेमोक्रेसी है एग्जाम्पल। जो नेशनलिज्म था, नेशनलिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, वो आगे जाके इतना पावरफुल फोर्स बन गई कि उसने यूरोप के रहने वाले लोगों के दिमाग का नक्शा और सब कुछ पॉलिटिकली सब कुछ चेंज कर दिया। मतलब जैसे पहले छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था यूरोप अंडर द किंग्स, उससे धीरे धीरे चेंज हो गए, मॉडर्न स्टेट्स और नेशन स्टेट्स बनने लगे। पहले जो स्टेट थे वो ज़्यादातर मोनार्च के द्वारा रूल किए जाते थे। अगर आप और मैं एक सेम नेशन स्टेट के अंदर रहते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें शेयर्ड और कॉमन होगी, आओ उसके बारे में देखें। सबसे पहले हमारी शेयर्ड आइडेंटिटी होगी। जैसे अगर मैं इंडियन हूँ तो आप भी, अगर मेरे नेशन में रहते हो तो आप भी इंडियन हुए, तो हमारी शेयर्ड आइडेंटिटी हुई ना कि यू आर इंडियन एंड आई एम ऑल्सो इंडियन। नेक्स्ट इज कॉमन हिस्ट्री एंड कल्चर। जैसे हम मेरी हिस्ट्री में सबसे पहले मुग़ल आए, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने हम पर गुलामी करी, हम पे राज किया, उसी तरह आपकी हिस्ट्री में भी यही हुआ होगा। मतलब जो जो मैंने सहा वही आपने सहा होगा, मतलब हमारे पूर्वज ने। कॉमन आइडेंटिटी, ये तो यही वाला पॉइंट है। नेक्स्ट इज कॉमन स्ट्रगल, जैसे कि मैंने आपको बताया जितना स्ट्रगल मैंने उस टाइम पे किया होगा, मेरे पूर्वजों ने उतना ही सेम आपके लोगों ने भी किया होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि मोनार्की से क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए। मोनार्की से टाइम के साथ साथ एक मॉडर्न स्टेट बने। मॉडर्न स्टेट वो होते हैं जो एक स्टेट होता है विद सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट है वो एक जगह सेंट्रलाइज्ड होगी, वो उस जगह पे बैठ के अलग अलग रूल बनाएगी और वो कंट्री में हर जगह फॉलो किए जाएंगे, यूनिफॉर्म लॉज बनाएगी और सब जगह फॉलो किए जाएंगे। मॉडर्न स्टेट से ट्रांसफॉर्मेशन, रेवोल्यूशन, एवोल्यूशन होते होते हमारे पास नेशन स्टेट्स आ गए। नेशन स्टेट में क्या होता है, जब सब लोग ऐसे फील करते हैं कि वो सब एक है, यानी कि वो एक नेशन का पार्ट है, तो उसको नेशन स्टेट बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएं तो सबसे ऊपर मैंने स्टार बना हुआ है, मैंने स्टार बनाया है। ये पॉइंट इन एमसीक्यूज में आ सकता है। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रांस एंड इट्स रेवोल्यूशन इन 1789। इसका मतलब है जो देशभक्ति की सबसे पहली लहर जगी थी यूरोप में, वो कहाँ से जगी थी। हमने क्लास 9 पे फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे कैसे लोगों के अंदर एक सेंस क्रिएट हुई कि जो राजा है वो सही नहीं कर रहा। So this is why the legendary line,
When France sneezes, the rest of the Europe catches cold is written. So remember this, the year of French Revolution and France, because it is very important country of Europe. Like one of the most important country you can say. अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं. फ्रांस वॉज अ टेरिटोरियल स्टेट अंडर एब्सोल्यूट मोनार्च बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने से पहले जो फ्रांस था वो एक टेरिटोरियल स्टेट था, यानी कि फ्रांस जो था वो फुल्ली एक एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के अंदर था, मतलब उस पर किंग रूल करता था, जिसको हम किंग को मोनार्च भी बोल सकते हैं. जब हमने क्लास 9 में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था तो वो कौन सा किंग था बताओ? Louis XVI. I hope you remember. The revolution led to the transfer of sovereignty from the king's hand to citizen. मतलब जो भी सारी की सारी पावर थी वो किंग के हाथ से छीन के फ्रांस के सिटीजन्स के हाथ में दे दी गई, क्योंकि सारी पावर अगर किंग्स के हाथ में होगी तो वो कुछ भी कर सकता है. मतलब वो सिटीजन्स की बात होती है तो उसको भी हटा सकता है. जब किंग होता है तब कोई भी सिटीजन नहीं होता, सब उसी की प्रजा होती है. बट जब डेमोक्रेसी होती है तो तब डेमोक्रेसी के सिटीजन्स होते हैं. What steps did the French Revolutionary took to spread the nationalism and the sense of collective identity among citizens? इसमें बोल रहे हैं कि जो फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे रेवोल्यूशनरी, उन लोगों को ये बताने के लिए जो किंग है वो अच्छा नहीं है, हमें किंग को हटा के डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, मोनार्की को हटाना पड़ेगा. ये सब लोगों को समझाने के लिए वो क्या क्या करते हैं और उनको कलेक्टिव आइडेंटिटी का पार्ट कैसे पढ़ाते हैं. पहले के जो लोग होते थे वो सोचते थे कि जो राजा है वो भगवान है, मतलब भगवान तो नहीं बट उसका एक रूप है जो कि सिर्फ उनकी मदद करने के लिए आया है, और उनका कुछ जैसे भगवान का अपने भक्त से नाता होता है उसी तरीके से किंग के साथ उनका एक रिलेशन है. तो वो किंग की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे. तो उसको बताने के लिए कि जो किंग है वो अच्छा नहीं है, उन्होंने क्या क्या किया. सबसे पहले उन्होंने आइडियाज़ को स्प्रेड किया. ला पात्रे एंड ले सिटोयन. ला पात्रे का मतलब होता है फादरलैंड. जैसे इन इंडिया वी कंसिडर इंडिया एज मदरलैंड, सिमिलरली फ्रांस कंसिडर फ्रांस एज फादरलैंड. दूसरा है हमारे पास सिटोयन, ले सिटोयन. ले सिटोयन मतलब द सिटीजन. अगर ये आपकी फादरलैंड है तो आप इस फादरलैंड के सिटीजन हो, यानी कि आप फादरलैंड के चिल्ड्रंस हो. थर्ड, न्यू ट्राई कलर फ्लैग वॉज इंट्रोड्यूस. फ्रांस का एक नया ट्राई कलर का फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे लोगों को ये पता चले, मतलब जब हम पुरानी चीज़ हटाएंगे नई लेके आएंगे तभी तो लोगों को समझ आएगा कि वो चेंज आ रहा है. इक्वल राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. चाहे वो कोई भी हो, फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट या थर्ड ई स्टेट का, सबको इक्वल राइट दिए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, कोई भी भेदभाव नहीं होगा. फ्रेंच वॉज मेड द कॉमन लैंग्वेज ऑफ फ्रांस. जो फ्रेंच थी वो फ्रांस की कॉमन लैंग्वेज बना दी गई, यानी कि सब फ्रेंच बोलेंगे और कोई और लैंग्वेज नहीं चलेगी, क्योंकि से अलग अलग रीजन होते थे तो अलग अलग लैंग्वेज चल जाती थी, उनमें डायलेक्ट्स आ जाते थे. बट ऐसा नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट है रीजनल और लोकल डायलेक्ट्स इन स्पीकिंग फ्रेंच वर डिस्करेज. मतलब जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है मेरे पास भोजपुरी का. जब कोई मतलब अगर यहाँ पर आप रहते हो और यहाँ पर आप भोजपुरी बोलते हो, अगर आप 10 किलोमीटर आगे जाओगे तो जो यहाँ पर लोग रहेंगे उनका भोजपुरी बोलने का तरीका आपके भोजपुरी बोलने के तरीके से अलग होगा. मतलब भोजपुरी का जो बोलने का तरीका है, जो लहजा है, वो हर 10 किलोमीटर बाद चेंज हो जाता है. तो ऐसे ही डायलेक्ट्स आते थे फ्रेंच में, उनको डिस्करेज किया गया, यानी कि हटाया गया. न्यू हिम्स ओट्स एंड सॉन्ग्स वर कंपोज्ड. नए नए गाने बनाए गए देशभक्ति की भावना जगाने के लिए, और कस्में खाई गई. फ्रांस का नेशनल एंथम हमने पढ़ा था क्लास 9 के चैप्टर में, क्या था वो? मर्साइलीज. क्या था? मर्साइलीज. अबॉलिशमेंट ऑफ इंटरनल कस्टम एंड ड्यूटीज. इस पॉइंट का मतलब है कि अगर आप फ्रांस में यहाँ पर रहते हो और आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको इधर करनी है या फिर इधर करनी है, तो आपको हर एक चेक पॉइंट पे आके उसका टैक्स देना पड़ेगा. जैसे इंडिया में टोल टैक्स देना होता है, उसी तरीके से आपको हर उस पे चेक पॉइंट पे टैक्स देना पड़ेगा, और वो हर जगह अलग अलग होता था. तो अगर आपको सामान यहाँ से यहाँ लेके जाना है तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता था. तो वो जो खर्चा आता था, मतलब जो पैसे लिए जाते थे, उनको हटाया गया. स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर. स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर का मतलब
पहले के ज़माने में जैसे अलग अलग रीजन होते थे तो वहाँ पर वेट्स और मेजर करने का तरीका सेम नहीं था। जैसे वेट्स में ले तो 1 किलोग्राम में कहीं कर पर 1987 ग्राम होते थे, कहीं पर 800 होते थे, कहीं पर 1000 होते थे। तो इसको हटाया गया और एक स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर का सिस्टम लाया गया। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, इसका मतलब है सरकार यहाँ बीच में बैठ के कोई डिसीजन लेगी और वो सब जगह यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया जाएगा और सबको उसे फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर की मेन कहानी को। नेपोलियन बोनापार्टे। जब हम क्लास 9 पे थे हमने उसका राइज पढ़ा था। अब हम उसके बारे में और देखते हैं। जो नेपोलियन बोनापार्टे था वो एक फॉर्मर मिलिट्री लीडर था। मतलब वो पहले एक मिलिट्री का लीडर था बट वो फिर बाद में रिटायर हो गया था या फिर क्या हो गया था मुझे नहीं पता, बट वो फॉर्मर था, यानी कि पहले था अब नहीं है। फिर उसके बाद हम आते हैं, उसने डिस्ट्रॉय करा था डेमोक्रेसी को फ्रांस के अंदर। उसने डेमोक्रेसी हटा दी थी, वो वापस लेके आया था मोनार्की को। नेक्स्ट, री इंट्रोड्यूस मोनार्की, जैसे मैंने भी बोला कि वो मोनार्की को वापस लेके आया था। उसने सिविल कोड ऑफ 1804 भी बनाया था जिसको नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। उसके बारे में हम अभी यहाँ पढ़ेंगे। ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड। अब चलो अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं। नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड ऑफ 1804, A chain of laws were made by Napoleon for his better administration. ये लॉज नेपोलियन ने इसलिए बनाए थे जिससे जो वो अपने पूरे देश को कब्जा कर सके और अच्छा से सारा चीज़ों को एडजस्ट कर सके, मतलब सब चीज़ों को अच्छे से एडमिनिस्ट्राइज कर सके। उसने इन लॉज को बनाया था। सबसे पहला लॉ था बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसका मतलब हुआ है कि जो उसने था नेपोलियन, उसने जो ट्रांसपोर्ट था और जो कम्युनिकेशन करने का तरीका था, मतलब अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो कम्युनिकेशन भी दूर दूर तक हो पाएगी, तो उसको ठीक कर दिया था सब लोगों के लिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसने रूल बना दिया था कि रोल लॉ के सामने चाहे वो कोई से भी स्टेट का हो, कुछ भी हो, वो सब इक्वल होंगे। अबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम एंड स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर। वो जो फ्यूडल सिस्टम पहले चलता था, स्लेव फीफ लॉर्ड वाला, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नहीं आएगा व्हाट इज़ फ्यूडल सिस्टम, तो उसको उसने हटा दिया था। लेस नंबर ऑफ करेंसी, फ्रांस में अलग अलग जगह अलग अलग करेंसी चलती थी। जैसे इंडिया में तो रुपये चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, यूरोप में यूरो चलता है, जापान में येन चलता है। उसने अपनी कंट्री के अंदर जो अलग अलग करेंसी चलती थी उनको कम कर दिया था और उसने सिर्फ एक दो ही रखी थी। नेक्स्ट, नो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है, पहले तो गिल्ड का मतलब होता है जैसे छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं। जैसे मेरी एक लिप ग्लॉस की फैक्ट्री है और उसमें 2-4 और लोग हैं और उनकी भी अलग अलग फैक्ट्री है, तो हम 2-4 लोग अपनी गिल्ड बना लेंगे और अगर कोई और लिप ग्लॉस बनाने की कोशिश करे या फिर बेचे तो हम उसको हटा देंगे गिल्ड से कि तुम नहीं बना सकते। तो उसको उसने हटाया था कि अब गिल्ड में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन बोनापार्टेज रूल। Initial enthusiasm soon turned into hostility. सबसे पहले ड्रॉबैक हमारे पास आता है लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। नेपोलियन ने किसी को भी ये फ्रीडम नहीं दी थी कि कोई भी उसके खिलाफ बोल सके या फिर कोई और अलग जैसे पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सके। नेक्स्ट, इंक्रीज टैक्सेशन। उसने भले ही ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अच्छा कर दिया था, इतनी सारी चीज़ें कर दी थी, बट उसने टैक्स बढ़ा दिए थे बहुत ज़्यादा। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रांस आर्मी, मतलब वो लोगों को ज़बरदस्ती बोलता था कि तुम फ्रेंच आर्मी में पार्ट लो। मतलब अगर किसी का मन ना भी हो तो उसको ज़बरदस्ती बोलता था कि तुम फ्रेंच आर्मी के अंदर जाओ। सेंसरशिप, मतलब सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब वो सबको, वो बिल्कुल भी किसी को भी अलाउ नहीं करता था कि वो नेपोलियन के खिलाफ कुछ बोल सके या फिर लोगों को बता सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, व्हाट इज यूटोपिया। अब इसका आंसर आप मुझे बताओ बिना देखे। सो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।